Hello all, welcome to the channel again. So this session is on validation technique, that is k-fold cross validation. Last lecture we had a detailed discussion about the model validation and what are the different techniques used for the model validation. So if you see the syllabus, in our syllabus we have only one technique to study, दैट इज़ के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन. सो आज हम बस उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे. बाकी और जो भी टेक्निक्स है वैलिडेशन के लिए, उसके भी डिटेल में आप जा सकते हो. बहुत सारा इंफॉर्मेशन अलग अलग वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आपको अगर डिटेल में जाना है तो आप वो सारी टेक्निक्स भी आप स्टडी कर सकते हो. सो दिस सेशन इज ओनली रिलेटेड टू द के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, हाउ द के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक यूज फॉर द मॉडल validation. So let's move towards a main important point, today's point, that is k-fold cross validation technique. So again, these are the some points related to the k-fold cross validation. So here first point is k-fold cross validation approach divide the input data set into k groups of sample of equal size. These samples are called as a fold, right? सो बेसिकली के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है, जैसे हमें पता है कि हम डेटा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. उसमें सबसे पहले ट्रेनिंग डेटा होता है, वैलिडेशन डेटा होता है और टेस्ट डेटा होता है. बट हियर इफ यू आर यूजिंग दिस टेक्निक, दैट इज के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, we have a data input data, whatever data we have to divide this data into the k number of groups, and these groups are having a equal size, right? मतलब जो ग्रुप्स हम डिसाइड करेंगे ना, उसमें जो नंबर ऑफ सैंपल्स रहेंगे वो इक्वल साइज ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स रहेंगे, राइट? एंड दिस नंबर के नंबर ग्रुप्स इज नोन एज अ फोल्ड्स. मतलब अगर हम k इज इक्वल टू 2 कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये 2 फोल्ड्स हमने कंसिडर किए, राइट? दैट्स व्हाई द नेम इज k fold क्रॉस वैलिडेशन, राइट? So the next point is for each learning set, the prediction functions use k1 folds and the test of the folds are used for the test set. मतलब इसमें जो भी हमने डिवाइड किया है उसमें से हम एक जो सेट है वो एज अ टेस्ट सेट यूज करते हैं, और बाकी रिमेनिंग जो सेट होते हैं ना उसे हम ट्रेनिंग सेट यूज करते हैं. वो मैं जब हम डिटेल में जब के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का वर्किंग देखेंगे तब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा वो किस तरीके से होता है. दीज आर द ओनली important point related to the k-fold cross validation technique, right? So the third point is this approach is very popular CV approach because it is easy to understand and the output is less biased as the other methods, right? So if you are using this technique, right, so we can improve the accuracy, or we can improve the performance of the machine learning model, right? Because we know during the validation we are using this validation data for also for the hyperparameter tuning, right? So the hyperparameter tuning is nothing but we are trying to achieve the higher accuracy, or we are trying to increasing the performance of the machine learning model, right? So here this is the best approach if we are looking for the higher accuracy, right? So these are the some important point, right? So next is these are the some step related to the k-fold cross validation. First you have to split the data into the k groups, whatever number of group you are selected. For example, like k is equal to 4, k is equal to 5, k is equal to 6. So these are the number of group you have selected. कि जो भी डेटा है, जो भी डेटा 100% डेटा आपके पास अवेलेबल है, आप उसे कितने फोल्ड्स में डिवाइड करोगे. सो तो ये k होता है, ये होता है फोल्ड. तो अभी यहाँ पे k इज इक्वल टू 4, सो दैट मीन्स द 100% डेटा इज डिवाइडेड इनटू द 4 ग्रुप्स. दैट मीन्स k 4 folds, right? So k1, k2, k3 and k4, right? Like the second step, for each group take a one group as a reverse or a test data set. So अगर 4 हम केस कंसिडर कर रहे हैं, 4 ग्रुप्स कंसिडर कर रहे हैं, तो 4 में से जो एक जो डेटा होगा उसे हम एज अ टेस्ट डेटा कंसिडर करेंगे, और जो रिमेनिंग 3 जो डेटा सेट होंगे उसे हम ट्रेनिंग डेटा कंसिडर करेंगे. यू कैन सी हियर, यूज द रिमेनिंग ग्रुप एज अ ट्रेनिंग डेटा सेट, राइट? फिट द मॉडल ऑन द ट्रेनिंग सेट
and evaluate the performance of the model using a test data set. So ये जो प्रोसेस है ये हम कंटिन्यूसली करते जाएंगे बिकॉज दिस इज एन इटरेटिव प्रोसेस, राइट? बिकॉज हियर number of folds are more than more than 2, or we can say here number of folds are 4, so here we have to do the 4 iteration, right? Here number of folds are 5, so we have to do the 5 iteration, right? So ये कुछ बेसिक थ्योरी हो गया जो कि के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के टेक्निक में हम यूज़ करते हैं। बट अभी हम जो नेक्स्ट इस पे हम देखेंगे कि एग्जैक्टली के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक हम यूज़ कैसे करते हैं, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इफ़ यू आर कंसिडरिंग द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, एक्सप्लेन द के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक इन डिटेल्स, राइट? सो 6 या फिर 8 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। सो दैट्स वाई one of the most important topic in unit number 4. So here as we all know that we have dividing the data into the 3 different categories like the training data, validation data and test data. For example here we have 100 samples, right? So एक data set है जिसमें हमारे पास 100 samples है. So as we know 70% data we are using for the training, remaining this 50% we are using for the validation, and this 50% we are using for the testing, right? But by using this split we can build a machine learning model and we can check the score, right? or we can check the performance, right? but ये यहाँ पे क्या होता है ना कि एक ही तरीके का टेस्टिंग डेटा प्रोवाइड करके आप जब कोई मॉडल बिल्ड करते हो ना, तो उसका जो परफॉर्मेंस है ना उसके ऊपर उसका इफेक्ट हो सकता है, राइट? क्योंकि हम नॉर्मली ये चाहते हैं कि हमारा जो भी मशीन लर्निंग मॉडल हम डेवलप करें वो हमें हायर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे, एक्यूरेसी उसका हाई हो। बट अगर हम एक ही तरीके का ट्रेनिंग डेटा उसे हम प्रोवाइड करेंगे तो मे बी चांसेस हो सकते हैं कि आपको जो रिक्वायर्ड एक्यूरेसी या फिर जो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस हो वो आपको ना मिल सके। तो इसके लिए फॉर ट्यूनिंग द मशीन लर्निंग मॉडल वी हैव टू यूज द क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक, दैट इज के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में हम नॉर्मली क्या करते हैं, सो हियर यू कैन सी, जैसे हमने स्टेप्स देखे कि सबसे पहला स्टेप्स तो होता है कि डिवाइड द डेटा इनटू द के ग्रुप्स, राइट? सो के ग्रुप्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फोल्ड। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव अ डेटा ऑफ 100 सैंपल, जो कि हमने इसमें लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि एक जो डेटा था ये उसमें 100 सैंपल्स थे। तो हम उसे क्या करेंगे ना कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा होगा, आपने देखा होगा कि जैसे हियर यू कैन सी इनपुट डेटा सेट इनटू के ग्रुप्स ऑफ सैंपल्स ऑफ इक्वल साइज, राइट? सो इक्वल साइज मतलब क्या? फॉर एग्जांपल इधर अगर ये 100 सैंपल्स है एक डेटा सेट में, तो हम ये 100 को मान लो हम इसे 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। तो 100 को अगर 5 में डिवाइड करेंगे तो ईच ग्रुप हैविंग 20 सैंपल्स, राइट? सो इसमें 20 होगा, इसमें 20 20 20 ऐसे 5। तो ये हो गया आपका पहला फोल्ड K1, K2, K3, K4 and K5. That means here the value of K is equal to 5, number of folds, that is K. So for this example the K is equal to 5, that means the number of folds are 5. So जो हमने स्टेप्स देखे तो उसमें बेसिकली हम क्या करेंगे ना कि जो फोल्ड्स हमने क्रिएट किए हैं उसमें से उन फोल्ड्स में से एक जो ग्रुप है उसको एज अ टेस्ट डेटा हम कंसिडर कर लेंगे। मान लो ये जो 20 सैंपल्स है इसको हमने एज अ टेस्टिंग सैंपल कंसिडर कर लिए, और जो रिमेनिंग जो ये 80 सैंपल्स है उन रिमेनिंग 80 सैंपल्स से हम जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो ट्रेन करेंगे, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट इटरेशन। ये पहला इटरेशन हो गया, हमने ट्रेन कर लिया, उसके बाद हमने टेस्टिंग डेटा देके उसका स्कोर कैलकुलेट कर लिया, राइट? उसी तरीके से सेकेंड इटरेशन पे जब आएंगे, सेकेंड इटरेशन के केस में क्या होगा, जो प्रीवियस इटरेशन में जो टेस्ट डेटा हमने कंसिडर किया था अभी उसको छोड़ के जो नेक्स्ट जो ग्रुप होगा उसके जो 20 होंगे सैंपल्स उसको हम एज अ टेस्ट डेटा कंसिडर करेंगे, और जो रिमेनिंग जो 4 ग्रुप्स होंगे उसको हम ट्रेनिंग डेटा कंसिडर करेंगे।
और ये जो रिमेनिंग 4 जो है उसके ऊपर हम उसे ट्रेन करेंगे, और ये जो 20 हमने सिलेक्ट किया उसके ऊपर हम उसे टेस्ट करेंगे और फिर से उसका स्कोर कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया आपका सेकेंड इटरेशन। सिमिलरली थर्ड इटरेशन में आप उसी तरीके से उसे प्रोसेस को रिपीट करोगे, जो कि नेक्स्ट जो ग्रुप होगा, जैसे फोल्ड K3 को आप एज अ टेस्ट डेटा कंसिडर करोगे और रिमेनिंग 4 यू आर कंसिडरिंग एज अ ट्रेनिंग डेटा, राइट। उसके ऊपर आप ट्रेन करोगे और ये टेस्ट डेटा जो आपने कंसिडर किया है उसके ऊपर आप उसे टेस्ट करोगे मॉडल को, और फिर से आप उसका स्कोर कैलकुलेट करोगे। दिस इज योर थर्ड इटरेशन, सॉरी। Similarly, repeat the same procedure for iteration number 4th. Similarly, repeat the same procedure for iteration number 5th. Here total 5 iterations are there because total number of folds are 5. Now here, after calculating the score for each iteration, finally what we have to do here, we have to averaging the score. तो जैसे मान लो ये स्कोर नंबर फर्स्ट, ये स्कोर नंबर सेकंड, ये स्कोर नंबर थर्ड, ये स्कोर नंबर फोर्थ और ये स्कोर नंबर फिफ्थ। तो ये पांचों स्कोर का हम एवरेज कर देंगे और वो हमारा होगा फाइनल एवरेज और फाइनल आंसर, सॉरी फाइनल एक्यूरेसी वी कैन से, और फाइनल स्कोर, राइट। सो ये होता है आपका क्रॉस के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। सो इससे क्या होता है ना कि आप एक ही तरीके का डेटा मॉडल को प्रोवाइड ना करते हुए आप उसे अलग अलग इटरेशंस करके आप उसे डेटा प्रोवाइड करते हो, अलग अलग टाइप का ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करते हो और अलग अलग टेस्टिंग डेटा प्रोवाइड करते हो। तो इससे आपका मॉडल का परफॉर्मेंस इंक्रीज होने में आपको हेल्प होती है, राइट। एंड ऑलवेज वी आर लुकिंग फॉर द हायर एक्यूरेसी एंड हायर परफॉर्मेंस, राइट। सो दिस इज अबाउट द के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो हियर important point related to the k-fold cross validation. So k-fold cross validation provides a more reliable estimate of model performance compared to the single train test split. मतलब जो अगर सिंगल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अगर हम यूज करते हैं तो उसके कंपैरिजन में ये के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक आपको जो रिलायबल एस्टिमेट ऑफ मॉडल परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू द सिंगल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मतलब उसके कंपैरिजन में आपको ये अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है, राइट। सेकेंड पॉइंट इज इट हेल्प्स असेस द मॉडल जनरलाइजेशन कैपेबिलिटीज एंड कैन गाइड द डिसीजन रिलेटेड टू द मॉडल सिलेक्शन, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग एंड असेसिंग द मॉडल रोबस्टनेस। मतलब ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपको मॉडल सिलेक्शन के रिलेटेड कि आपको कौन सा मॉडल बेस्ट होगा सिलेक्ट करने के लिए, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और आपका मॉडल कितना जनरलाइज कितना ऑप्टिमल आपने डेवलप किया उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, राइट। सो आई होप ये जो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अगेन एज आई सेड कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। सो प्लीज़ आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन चांसेस है बहुत कि आ सकता है। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज सेशन। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।